Welcome to this lecture on Quine-McCluskey algorithm, an application by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Tushar and Anushka. So we did last time, we did Quine-McCluskey algorithm, right? Okay. So today also we will continue on that and we will do one example based on that. Okay, so then you will learn how to simply write. क्योंकि उस समय जो मैंने कराया था, in between I wrote various steps also. So now we are simply going to write how you will write in the exam. Okay, so then you will learn how to write in the exam also. So let us do that. So let me share my whiteboard with you. So is this screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So we are going to find the minimal form of a polynomial using this Quine-McCluskey algorithm. So this is the question. So we are given dn already. We are sometimes if we are not given the dn form, अगर किसी और form में दिया हुआ है, तो first we will have to reduce the function in dn form and then we will apply Quine-McCluskey algorithm. So but right now we are already given in sum of products form, so we can apply Quine-McCluskey algorithm. मतलब basically we not even want in dn form, we just want it in the form of sum of products. अगर sum of products की form में है, तो then we can apply this Quine-McCluskey algorithm. ठीक है? But generally it is given in dn form only. So let us try to prove this. Okay. So what was the first step? So we have to determine its minimal form. So what was the first step? We have to replace dash to 0 and if there is no dash to 1. 1. And if the variable is missing, then by dash. ठीक है, but यहाँ पे क्योंकि it is in dn form, so all variables are there. But अगर dn form में नहीं दिया हुआ है, अगर sum of products form में दिया है, तो complement by 0, variable by 1 अगर variable present है, और if variable is not present then by dash. So यहाँ पे all the variables are present right now. So minimum कौन से हैं? देखो 0 इसमें एक भी, so this is with 0 ones. पहले हम देख लेते हैं, और कोई है 0 ones के साथ? No. Then this is with 1 1. This is also with 1 1. So ये इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है. So let us write this. So v dash w dash x dash, sorry, v w x y. So पहले टर्म में है, this is your 0 0 0 0 0, right? The next term है तुम्हारा 0 0 0 1 0. Third term है, so third term is 0 0 1 0 0. Fourth term is 0 0 1 1 0. Fifth term 0 1 0 0 1. Sixth term 0 1 0 1 0. This term is 0 1 1 0 1. Then this term is 0 1 1 1 and then 0, right? And then this term, it is 0 and 4 times 1. ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा. फिर then we have, let us put this थोड़ा साइड में कर देते हैं इसे. ठीक, सो कहाँ तक कर लिया था हमने?
इस टर्म तक कर लिया था, राइट, इस टर्म तक कर लिया था. सो दिस इज देन 1 0 0, स्पेस बराबर रखना पड़ेगा. सो लेट अस जस्ट कीप इट. So let us just write it. So this is your 1 0 0 0 0, then 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1, then you have 1 1 0 1 0, then you have this 1 1 1 0 0, then you have this 1 1 1 1 0, and last is all 1. So let us just calculate the number of ones in each. So इसमें 0 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 2 3 3 4, then it has 1 2 3 3 3 4 5. So we have to, what is the next step? Yes, what is the next step? Sir, we have to write them in sequence. Yes, we have to write them in ascending order of ones, right? So 0 के साथ तो एक ही है. So ये टेबल जो है, मैं let me just copy paste. So हमारे पास ये टेबल आ जाएगी. We have to rearrange it. ठीक है. So rearrange करने के बाद we will get this table. So after rearrangement we will get this this थोड़ा और छोटा. So after rearrangement we get the following table, right? So this is first row, this is second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row, and so on, right? अब क्या करना है हमें? What is the next step? We have to club. जिसमें वो एक ही प्लेस पे डिफरेंस है, उनको सबको क्लब करना है. सो कौन कौन से क्लब होंगे? पहले 0 और 1 में चेक कर लेते हैं कौन कौन से होगा. 1 के साथ कौन कौन सा है इसमें? 2 3 4 में से yes, which are compatible with 1 and 2 3 4. Compatible मतलब there is difference at all of them. All the three, right? All the three are compatible. So let us just write them. So क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 1 2 से we will get 0. So 1 2 से हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे डैश आएगा, राइट? और Yes. इस 1 3 से थर्ड पोजीशन पे डैश आएगा, एंड 1 4 से फर्स्ट पोजीशन पे डैश आएगा, राइट? And then we will have this line. So this is your 1 2, this is your 1 3, this is your 1 4. Now similarly, now अब इससे देखो 2 के साथ कौन से कंपैटिबल है 5 6 7 8 में से? 5 and 7. 5 and 7. पहले हमें ये पोजीशन देखनी है कि 1 कहाँ पे मैच कर रहा है.
ठीक है। सो 5 and 7 जिसके साथ 1 मैच कर रहे हैं। सो 5 से 2 5 से क्या आएगा, डैश कौन सी पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे, राइट। 0 0 डैश 1 0, दिस इज योर 2 5 and then what you will get, 0 dash 0 1 0. yes, 0 dash 0 1 0, this is your 2 7। अब 3 के साथ कौन से कंपेटेबल है, 3 इज थर्ड पोजीशन पे 1 है, तो थर्ड पोजीशन पे 1 5 में है और बस 5 में ही है, और 5 में बस, तो 3 and 5 आर कंपेटेबल ओनली, राइट। हमें ये चेक करना है थर्ड पोजीशन। सो सिंपली, सो हमारे पास 3 और 5 से कौन सी पोजीशन पे आएगा अपने पास, फोर्थ पोजीशन पे डैश आएगा, Fourth राइट। position पे 3 5 और 4 के साथ कौन सा कंपेटेबल है, 4 के साथ दिस 8, राइट, 8 इज कंपेटेबल, सो इट विल बी फिफ्थ पोजीशन पे। सो जो जो यूज करते जा रहे हैं उस पर टिक भी लगाना होता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लगा रखा है बिकॉज ये तो बुक से है। सो क्योंकि फर्स्ट यूज कर लिया हमने तो फर्स्ट पे टिक हो गया, देन वी हैव यूज सेकंड, वी हैव यूज थर्ड, वी हैव यूज फोर्थ। तो जो भी यूज करते जाओ उस पर टिक लगाते जाना है, और जो नहीं यूज हो पाता उस पर ए लिख देना या बी लिख देना या सी लिख देना, सो दैट दे विल बी अवर प्राइम इम्प्लीकेंट्स, राइट। सो 1 0 0 डैश, दिस इज योर 4 and 8, राइट। और साथ में यहाँ पे ये भी यूज हो गए, 5 इससे यूज हो गया, 5 और 7, एंड देन 6 अभी नहीं यूज हुआ ना अपना, और 8 जो है इससे यूज हो गया, ठीक है। तो जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं उनको टिक लगाते जाना है, 6 अभी यूज नहीं हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में यूज होता है कि नहीं। अब इनमें देखना है 5 किसके साथ कंपेटेबल नीचे में से, 9 10 11 12 में से, सो लेट मी जस्ट गिव यू द कंप्लीट टेबल। अब ऐसे ही सेम बना सकते हो तुम, ठीक है। Let me just give you the complete table. So next, same way you can repeat complete the process, so you will get this table. Okay, so you will get this table. अब दोबारा देखना है हमें कौन कौन से कंपैटिबल होंगे और कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स आएंगे। सो लेट अस डू दैट, ठीक है। सो 1 2 के साथ देखो, 1 2 के साथ कौन सा कंपैटिबल होगा इधर, 2 5 2 7। सो जहाँ पे डैश मैच करना चाहिए, मैच यहाँ पे डैश कर रहा है और ये एक पोजीशन पे डिफरेंस है, सो दिस विल बी 0 0 डैश डैश 0। ये किससे बना, 1 2 and 3 5, right? Right, so we have used this 1 2 and we have used 3 5। जो भी यूज करते जा रहे हैं उस पर टिक लगाना होता है, या राइट साइड पे लगा देते हैं हम टिक। so we have used, so we have used 1 and we have used 3 5। now next 1 1 3 के साथ सेकंड पोजीशन पे ये वाला है, बस यही है इसमें, और इसमें यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे, so 0 0 this and 0, and it is coming from 1 3 and 2 5, same sequence आ गई है। so this 1 3 and 2 5 को you just tick। now what about 1 4, 1 4 किसके साथ compatible है, 1 4 is not compatible with any of these, right?
Yes. 1 4 is not compatible with any of this, so हमें फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट मिल गया हमारा. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट. यस, अब चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट लेवल. सो नेक्स्ट लेवल इज 2 5. 2 5 किसके साथ कंपैटिबल है? इन दोनों के साथ. 6 9 और 3 के साथ है बल्कि. सर 1 भी तो देखना होगा ना. हाँ हाँ 1 भी देखना होगा. 7 उसके बाद 10 के साथ है. पहले ये देखेंगे ना डैश. अब इनमें से 3 में से देखेंगे. तो 0 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, सो नॉट पॉसिबल. अब यहाँ पे इसके साथ 1 मैच कर गया, सो दिस इज देयर. बस 7 10 के साथ ही कंपैटिबल है. ठीक है, 2 5 7 10 और एक कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? इट विल कम इन 7 10 में कौन सी पे चेंज? यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे. राइट, सो जस्ट मार्क 2 5 तो ऑलरेडी मार्क्ड है. जस्ट टेक अ 7 5. ठीक है, यस. नाउ व्हाट अबाउट 2 7? Yes. 2 7 किस? 2 7 में 5 10. बस 5 10 और यहाँ पे 1 भी मैच कर रहा है, सो थर्ड पोजीशन पे भी डैश आ जाएगा. So 0 dash dash 1 0. This is your 2 5 and this is no, sorry, 2 7 5 10. So we have used 5 10 also and we have used 2 7 also. So ये use हो गया. Then come to 3 5. What will be for 3 5? ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा. So 3 5 is not compatible with any of these, but it is already being used, so इसको हम prime implicant नहीं बनाएंगे, right? ठीक है, वो वैसे यहाँ पे ये नीचे से किसी के भी साथ compatible नहीं है, but because this has been already used, so इसको ये prime implicant नहीं है हमारा. Now come to 4 8. 4 8 भी किसी के साथ compatible नहीं है और 4 8 use भी नहीं हुआ है पहले, right? So 4 8 is our second prime implicant. Is it right? Yes. चलो, so एक दूसरा लेवल खत्म हो गया हमारा. अब now come to third level. So अब let us look at 5 10. 5 10 और इधर. So इधर किसी के साथ भी compatible नहीं है 5 10. But it is already being used, so इसको कुछ नहीं करेंगे. Now come to 6 9. 6 9 ये वाला जो है इसके साथ और 1 भी मैच कर रहा है, but this is not matching, right? ठीक है, there is difference. यहाँ पे 1 पे भी है. ठीक है, ये 1s भी मैच करनी चाहिए ना. So 3 positions should match क्योंकि यहाँ पे 2 1s हैं और एक डैश है. So all 3 positions should match. So यहाँ पे एक यही पोजीशन आती है जहाँ पे डैश मैच कर रहा है, बट डैश के साथ ये 1 तो मैच कर रहा है, बट दिस इज नॉट मैचिंग. सो दिस इज नॉट कंपैटिबल विद एनी ऑफ दिस. सो इट इज अवर थर्ड प्राइम इम्प्लिकेंट, राइट? Is it clear? Yes. Yes, sir. Now come to this 7 10. 7 10 में भी सेम यही वाला पोजीशन है और ये 0 भी मैच कर रहा है, 1 भी मैच कर रहा है. So 7 10 is matched with 12 15 और कौन से पोजीशन पे डैश आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे. Yes. So Yes. dash 1 dash 1. थोड़ा ध्यान से करना है इसे क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. 7 10 and 12 15 था ना? Yes. So 12 15 यूज हो गया, so इसलिए we have put a tick here. Now come to, और कोई तो compatible है नहीं. Now come to this 7 12. 7 12 जो है तुम्हारा ये पोजीशन मैच कर गया, this position is being matched, लेकिन ये नहीं मैच कर रहा. ठीक है, सॉरी, ये 7 12 is matching with 10 15. ठीक है, यस. और कौन सी पोजीशन पे आएगा? थर्ड पोजीशन पे. So dash 1 0. 7 12 10 15 and you will see that ये जो है जहाँ पे भी सीक्वेंसेस मैच होंगी वो सेम आ जाएगा ये. So हमने 10 15 भी यूज कर लिया, 7 12 भी यूज कर लिया.
Now what next? 811 किससे match हो रहा है? 811 is being matched with this 1215, लेकिन इसमें ये नहीं मैच कर रहा. This one is not, so it is not compatible. So 811 is our fourth prime implicant. ठीक है. This is our fourth prime implicant. What about 914? If you go to 914, is it compatible? No. It is not compatible. So 915 is our, sorry. So 915 is our fifth prime implicant. Then what about this 1014? So ये इसके साथ मैच कर गया तीनों. 15 16. So this is there. So first position पे there will be a dash, 3 ones and then dash. Okay, I am coming in 2 minutes. Okay, there is someone at the door, so just. Okay, so I am back. So हमने कौन से कर लिया था? This one was from 1014 and 15 16, right? So all these two are marked. Now come to 1015. 1015 is with compatible with 14 16, right? Same, because this is the only place of difference. 10 14 15, sorry, 10 15 14 16. Yes, 14 16 is also covered. Now 12 15 is not compatible, but it is already used. 13 15 is not compatible, so it is our sixth prime implicant. Fine. So we have till now we have found first prime implicant, second, third, fourth. So you can number also 1 2 3 4. अगर A B C D नहीं करना है तो नंबर भी डाल सकते हो. ठीक है? Is it fine? So these two are same, these two are same, these two are same. So we just have 4. अब टेबल में हमारे पास 4 ही बचे हैं. ठीक है? So this table can be rearranged, rewritten as, rewrite above table, removing duplicates. So हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 0, this 0, एक तो ये है, then 0 double, so that is the second level. So 0 double dash 1 0. ठीक है, इसको this is due to 1 2 3 5 and this one is due to 2 5 7 10. But next, and एक ये टेबल है हमारे पास. And then there is one more. Yes, these are the four tables we have, 4
दिस विच आर लेफ्ट, इनको एक बार चेक करना है इनमें से कौन से प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं और कौन से नहीं है, एंड देन वी विल बी थ्रू अवर दिस क्वेश्चन. Okay, so now let us come to this. अब कौन कौन से compatible हैं? So this is not compatible with the third one, so this is a prime implicant. So this is our prime implicant, right? This is not compatible with this. This is not compatible with. So इस step में कोई भी use नहीं है. So these are all prime implicants, right? So how many prime implicants we have? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ठीक है, 6 plus 4, 10 prime implicants we have. ठीक है, so now we have to make the table for these prime implicants, right? So let me just copy paste the table. Exam में तुम्हें बनाना पड़ेगा खुद ही. Okay, so this is the table. ये उल्टे ऑर्डर में इसलिए लिख रहे हैं, there is a importance to this. So उल्टे ऑर्डर में लिखने का ये फायदा होता है क्योंकि इसके अंदर सबसे कम हुआ है, so हम उस हिसाब से चलते रहते हैं, जो सबसे कम है उसको ज्यादा यूज करना है. ठीक है, so this is your, this was your A, B, C, D, E, F, G, H, I and J, right? यही नाम दिया था हमने. So this is your A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So these are all prime implicants. और ये जो हमारे ओरिजिनल थे, जो फर्स्ट टेबल में थे, these are all, ये जितने भी थे इनको लिखना होता है. ठीक है, so ये these are all there. So इसको इस तरह से लिख दिया हमने सारे के सारे 16 जो थे हमारे पास, एंड इसमें से हमारे पास ये प्राइम इम्प्लिकेंट है. So now this is ये किस किस से डैश को छोड़ के कौन से 3 मैच हो रहे हैं इसमें. So this is being matched, this is being matched and this is being matched, this is being matched. ठीक है, is it fine? Similarly ये सारे जो ये 1 1 0 जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो देखना है हमें. So 1 1 0 किस में आ रहा है, 1 1 0, right? And then 1 1, sorry ये नहीं मैच होगा, 1 1 0, फिर then 1 1 0. So this is being matched. और कौन सा है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा. Yes, this one is there, 1 1 0. So इस तरह से you have to mark, tick mark. Then you have to say 0 1 0. So 0 1 0, then 0 वाला कौन सा है, ये है लेकिन इसमें नहीं है. फिर 0 1 0, then 0 वाला कौन सा है, 0, बट यहाँ पे 0 है. So this is not there, this is also not there, और इसमें तो कोई है ही नहीं. So इसके ये 4 है. ठीक है, H में ये 10 गलत मार्क कर दिया इन्होंने. दिस शुड नॉट बी मार्क्ड क्योंकि यहाँ पे ये 1 है. ठीक है, अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 0 तो पहला वाला है. ठीक है, 0 1 0. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन पुट दिस क्रॉस मार्क्स हियर. ठीक है ना, कर लोगे ना, ये मैच करके सारा पूरा ये खुद से करना पड़ेगा. सो ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल नहीं देंगे तुम्हें, 16 वाला नहीं देंगे. जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा था 4 5 का, दे विल गिव यू दैट, उसमें से 2 3 बचेंगे. ठीक है, 6 7 का दे सकते हैं मैक्सिमम, या 8 का, क्योंकि वो इतना बड़ा कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है मैनुअली. ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट दिस टेबल. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज, अब टेबल हमने बना ली. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी हैव टू लुक फॉर कॉलम्स जिसमें अकेला क्रॉस है. सबसे पहले हमारा वो काम है, वी हैव टू लुक फॉर कॉलम्स जिसमें द क्रॉस इज अलोन, राइट? ठीक है, so कौन कौन से कॉलम्स हैं जिसमें क्रॉस इज अलोन? लेट अस, यस, थर्ड कॉलम, सिक्स कॉलम एंड थर्ड कॉलम है. सो थर्ड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये फोर्थ वाला है हमारे पास. जे आ गया हमारे पास. जी इज मैंडेटरी, इसको लेना ही पड़ेगा.
then this sixth column, right? Sixth column और sixth जो है वो C के corresponding है, so we have to take this. Now sixth column में ये है, so this is corresponding to C, so C को भी C is mandatory. Then इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं. Then is this 11th column, right? 11th column, so 11th column के corresponding हमारे पास D है, so D को लेना mandatory है हमारे लिए. And then this 12th column जो है ये I के corresponding है, so I को लेना mandatory है. And then this 13th column में 13th is corresponding to कौन सा है? Yes, A B C D E. नहीं sorry, इधर ये F, this one, right? So F आ रहा है, so F is लेना mandatory हो गया. Then इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इधर एक है 16th column, so 16th के लिए J को लेना कंपल्सरी हो गया. अब क्या करना है? We have to, so इस what we can do is we can match this, so जो कवर्ड हो चुके हैं, so एक ये कॉलम कवर्ड हो गया, एक ये कॉलम कवर्ड हो गया, ठीक है, ये रफली. And then this column is covered, this is covered, and then okay, so this is covered, then this D is covered, and then this one is covered, ठीक है. So अब जो कवर्ड हो चुके हैं उसके अलावा अगर कोई एक बचता है, कॉलम एक बचता है, तो वो लेना होगा हमें, जो मतलब कोई भी इसमें कवर्ड नहीं है और वो अकेला है. So हमारे पास क्या क्या कवर्ड नहीं हुआ, देखो कौन कौन सी पोजीशंस कवर्ड नहीं हुई है हमारे पास. इसके लिए हमारे पास है इधर ये रहा, इसके लिए भी ये है, this is also covered by this, then this one is not covered, fourth is not covered, right? fourth में कोई भी नहीं आ रहा, fourth में कोई भी नहीं आ रहा. so fourth में हमारे पास दो ऑप्शन है, B या A, right? fourth में we have two options, B और A, कोई भी एक ले सकते हैं हम. और देखते हैं कौन से, इन दोनों में से अभी देखेंगे कौन सा लेना है. वैसे तो ये क्योंकि A जो है इसको कवर कर रहा है जो ऑलरेडी कवर्ड है, और B जो है वो इसको कवर कर रहा है जो कि ऑलरेडी कवर्ड है. सो हम कोई भी ले सकते हैं, वी हैव बोथ, वी कैन चूज एनी वन ऑफ दिस, दोनों ही सही ऑप्शन है, ठीक है. सो कोई भी ले सकते हो, A और B. अगर क्या होता है कि मे बी इट मे बी पॉसिबल कि B जो है कहीं और भी यूज हो रहा है, कंपलसरी हो रहा है कहीं और, तो हमें फिर B लेना पड़ता, ठीक है. सो इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा हमें. यस, सो B और A में से अभी देखते हैं किसको लेते हैं. वैसे कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. देन 5 इज ऑलरेडी कवर्ड, 6 के लिए है हमारे पास, 7th के लिए भी हैव, 8th के लिए भी हैव, यस, और 9th के लिए ये रहा. देन 10th के लिए देयर इज, 11th के लिए भी हैव, 12th के लिए भी हैव, 13th के लिए भी हैव, एंड 14th के लिए इज देयर, 15th के लिए भी है, 16th के लिए भी है. सो वी जस्ट हैव टू चूज वन ऑफ दिस टू, ठीक है. सो आइदर A और B, कोई भी ले लो. तो लेकिन कौन सा लेंगे हम? और दोनों में ये भी कम है, देखो दोनों में ये भी, अगर ये हमारे पास दो ऑप्शन आए थे, वी हैड टू ऑप्शंस, B और A, ठीक है. अब B और A में से बेस्ट चूज करने का तरीका क्या था, जिसमें लिटरल्स, या तो जो कि अगर B ऐसा हो सकता था कि B कहीं ऐसी जगह आता है जहाँ पे वो कंपलसरी हो रहा है, तो हमें B लेना पड़ता, ठीक है. बट क्योंकि अब यहाँ पे B और A में से दोनों ही पॉसिबल ऑप्शन है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है. और दूसरी चीज क्या है कि इसमें लिटरल्स भी बराबर हैं, इसमें भी 4 लिटरल्स हैं, इसमें भी 4 लिटरल्स हैं.
सो लिटरल्स भी बराबर है, सो दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन आते हैं बट हमारे पास जैसे अगर ए और एच में चॉइस करना होता तो वी वुड हैव गॉन फॉर एच बिकॉज एच में कम लिटरल है। देयर आर 3 लिटरल्स इन एच व्हाइल इन ए देयर आर 4 लिटरल्स, सो एच मिनिमल होता। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों ही बी और ए दोनों ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर भी दोनों के अंदर 4 लिटरल्स हैं, सो वी कैन चूज एनी ऑफ दीज टू। सो हमारे पास वो क्या आ गया, P is equal to क्या होगा हमारे पास, P is equal to A plus C plus D plus F plus G plus I plus J, right? So this is nothing but ये क्या है, पहला टर्म क्या था हमारा V W X Y Z, so W dash X dash Y dash Z dash, फिर इसमें C में क्या है हमारे पास V dash X, sorry V W X is missing, Y dash Z, then D में है V W dash X is missing, Y dash Z, and then F में क्या है 110, so it is V W X Y is missing Z dash, फिर इसमें है V dash W dash Z dash G के अंदर, फिर I के अंदर क्या है हमारे पास, if you see I it is V is missing, W X is missing, Y and Z dash I हो गया, then J में क्या है V is missing and W X Y, ठीक है। so this is the minimal polynomial, या B भी ले सकते थे यहाँ पे, दो वो भी मिनिमल पॉलिनोमियल होता, ठीक है ठीक है। इज इट फाइन, यू कुड हैव गॉन फॉर अदर ऑप्शन आल्सो, बी के लिए भी चले जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वी कुड हैव गॉन फॉर बी विद बी आल्सो, वी कुड हैव गॉन विद बी आल्सो, तो इसमें क्या हो जाता है, P वुड बी B प्लस C प्लस D प्लस F प्लस G प्लस I प्लस J, सो सेम ये हो जाता है पूरा का पूरा एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फॉर दिस टर्म, बाकी सब सेम होता है। सो B क्या हो जाता है यहाँ पे, B इज अवर 1000, so V W dash X dash Y dash, ठीक है। so this is the answer, these two are fine. Another answer, as there is choice between A and B, A और B में दोनों में choice है, ठीक है। so this is how you can manage, ठीक है fine. Is it clear everyone? ये क्वेश्चंस कर लोगे ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़े और करके, एक तो लिखना आ जाएगा जल्दी क्योंकि थोड़ा स्पीड लानी है इसमें, और दूसरी थिंग थोड़ी एक्यूरेसी आएगी, और थोड़ा एक हैबिचुअल भी हो जाओगे इसको करने के, ठीक है। So this is all we have today. In the next class we will start with another method which is called Karnaugh diagram, okay? So that we will do tomorrow, okay? So any questions anyone want to ask? Okay, so there are no questions, so I am ending this class, okay? Bye everyone, have a good day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, Online Learning, to stay updated and share with your friends. Happy learning through online learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.